हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुदेश और आज हम लोग एक और एनसीईआरटी की रीडिंग के क्लास में आ गए हैं। और ये है जूलॉजी की एनसीईआरटी की रीडिंग की क्लास। तो सब लोग तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ये हम लोगों ने शुरू किया था। दो क्लास हो चुके हैं और उन दोनों क्लास में जितना मैंने पढ़ाया है उतना मैं रीडिंग कर देता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो चुका है। In the preceding chapter, you come across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of animal kingdom. In unicellular organism, all functions like digestion, respiration, and reproduction are performed by a single cell. In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different group of cells in a well organized manner. The body of a simple organism like Hydra is made of different type of cells, and the number of cells in each type can be in thousands. The human body is composed of billions of cells to perform various functions. How do these cells in the body work together? In multicellular organism, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function such as organization is called tissue। तो ये सारी बातें मैंने क्लास में भी कही थी। तो इसके बाद वाले पैरा में चलते हैं। You may be surprised to know that all complex organ animals consist of only four basic type of tissue. These tissue are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lungs, heart, and kidney. When two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system, that is digestive system, respiratory system, etc. Cells, tissues, organs and organ systems split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of a body as a whole। टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, ये सारी बातें भी मैंने क्लास में कही थी। यहाँ पर वही सारी बातें लिखा हुआ है कि ये सारे चीज़ें एक साथ मिलकर जब कंट्रीब्यूट करती है तब एक होल बॉडी चल सकती है। अब आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज में। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर broadly classified into four types: epithelial, connective, muscular and neural। तो मैंने क्लास में कहा था यही चार प्रकार के होते हैं। तो उनमें से आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। Epithelial tissue. We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. Plural में कहा जाता है epithelia. This tissue has a free surface which face either a body fluid or outside environment and thus provide a covering or a lining for some part of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. There are two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is composed of a single layer of cell and function as a lining of a body cavity, ducts and tubules. The compound epithelium consists of two or more cell layer and and has protective function as it does in our skin। तो यहाँ पर काम लिखा हुआ है। मेनली दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्पाउंड। सिंपल वाला यूनिसेलुलर होता है, कॉम्पाउंड वाला मल्टी सेलुलर होता है। बस इतना ही था। मल्टी सेलुलर वाला प्रोटेक्शन का काम करता है और सिंपल वाला डिफ्यूजन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये से बहुत सारे काम करते हैं। On the basis of structural modification of cells, simple epithelial is further divided into three types. There are squamous, cuboidal and columnar। यहाँ पर उनके पिक्चर दिए हुए हैं। ए नंबर वाला है फ्लैटेंड सेल और यानी स्क्वामस सेल, स्क्वामस एपिथेलियम।
एंड बी नंबर है क्यूब लाइक यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सी वाले में है लंबे लंबे सिलिंड्रिकल टाइप है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं कोलुमिनार एपिथेलियम। और ये जो डी नंबर है उसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं कुछ बाल टाइप के कुछ है, तो उन्हें सीलिया कहते हैं। तो यह है सिलिएटेड कोलुमिनार क्योंकि ये कॉलम टाइप शेप के है। और कोलुमिनार में जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में होता है, क्यूब में बीच में होता है, और फ्लैटन में यानी स्क्वामस में भी बीच में होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा क्या है। तो अब आ जाते हैं इसके बाद वाले पैराग्राफ में। The squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cell with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels and air sac of lungs and are involved in function like forming a diffusion boundary. The cuboidal epithelium is composed of a single layer of cube-like cell. पहले स्क्वामस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैटेंड है और इरेगुलर बाउंड्रीज है। इसे हम लोगों ने क्या कहा था, टेसिलिटेटेड। तो वो कहाँ मिलते हैं, हमने कहा था एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, तो वो लिखा हुआ है। और कहाँ मिलते हैं, एयर सैक ऑफ लंग यानी एल्वियोलाई में। तो अब आ जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। ये भी सिंगल लेयर है और क्यूब लाइक सेल्स है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी एंड इट्स मेन फंक्शन इज आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल of nephron in the kidney has microvilli. The columnar epithelium, ये columnar आ गया। तो क्यूबॉइडल में क्या क्या हुआ, क्यूबॉइडल सिंगल लेयर होता है, क्यूब लाइक होता है, कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। मैंने कहा था सिंगल लेयर जो होता है वो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाया जाता है, और लार्ज डक्ट में क्या पाया जाता है, मल्टी सेलुलर पाया जाता है। वो हम लोग बाद में ज़रूर बात करेंगे उसके बारे में भी। तो पीसीटी में जो है माइक्रोविलाई होता है, तो वो वाला कोलुमिनार का होता है। तो देख लेते हैं उसके बाद क्या लिखा है। द कोलुमिनार एपिथेलियम इज ए composed composed of a single layer of tall and cylindrical cell. Their nuclei are located at the base. Free surface may have microvilli. They are found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption. If the columnar or cuboidal cell bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over epithelium. They are mainly present in inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिसाइसली हमने डिवाइड किया है क्लासेस में। अच्छे से देखने पर सब कुछ समझ आ जाएगा। क्लास देखने के बाद ही ये वीडियो देखें तो आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस पूरे जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंग्लिश में नहीं हिंदी में, ताकि समझ में आ जाए। तो सिंपल स्क्वामस लेयर जो होता है वो सिंगल लेयर होता है, फ्लैटेंड सेल होता है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, इसे हम लोग कहते हैं टेसिलिटेटेड। इनका काम क्या होता है, मेनली डिफ्यूजन करना। तो डिफ्यूजन के लिए वो कहाँ रहते हैं, ब्लड वेसल्स में और एल्वियोलाई में, लंग्स के, क्योंकि इन्हीं दो जगह पर डिफ्यूजन होता है। किस चीज़ का डिफ्यूजन, लंग्स में होता है एयर का डिफ्यूजन, और ब्लड वेसल्स में जो है वहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है। तो अब आ जाते हैं क्यूबॉइडल में। वो भी सिंगल लेयर होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो पाए जाते हैं कॉमनली डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, जो भी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है वहाँ पर पाए जाते हैं। पीसीटी के जो यानी नेफ्रॉन का जो पीसीटी है यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, वहाँ पर भी क्यूबॉइडल का माइक्रोविलाई वाला वर्जन पाया जाता है। तो हो गया क्यूबॉइडल। अब आता है कोलुमिनर एपिथेलियम। ये भी सिंगल लेयर होता है, सिलिंड्रिकल सेल होता है। इनके न्यूक्लियाई जो है वो बेस में पाए जाते हैं। फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई हो सकता है, और क्यूबॉइडल और कोलुमिनर दोनों में ही सीलिया हो सकते हैं। इन सीलिया का काम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करना। कहाँ कहाँ मिलता है, ब्रोंकियल्स में मिलता है और फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। ब्रोंकियल में किस चीज़ का फ्लो होता है, एयर का फ्लो होता है, और फैलोपियन ट्यूब में हमारा जो स्पर्म्स का फ्लो होता है, फिर ओवम का फ्लो होता है, वो सारा चीज़ यहाँ से कंट्रोल करते हैं सीलिया की मदद से।
अब some of the columnar and cuboidal cell get specialized for secretion and are called granular epithelium. They are mainly of two types: unicellular, consisting of isolated glandular cell, goblet cell of alimentary canal, and multicellular, consisting of cluster of salivary gland. On the basis of mode of pouring, their secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine. Exocrine glands secretes mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme, and other cell products. These products are released through the duct or tubes. In contrast, endocrine glands do not have ducts. Their products, called hormones, are secreted directly into the fluid bathing the gland. तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कोलुमिनर एंड क्यूबॉइडल सेल जो होते हैं वो ग्लैंड्स तैयार करते हैं। ये ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, गॉबलेट सेल और पिनीथ सेल, ये मैंने क्लास में कहा था। तो ये दो तरह के यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर क्या क्या हो सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा ये मोड ऑफ पोरिंग यानी कहाँ पर जाते हैं, कैसे इन्हें सीक्रेट किया जाता है, उनके ऊपर डिपेंड करके भी दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है, इनमें ट्यूब होता है और एंडोक्राइन में कोई ट्यूब नहीं होता है। एक्सोक्राइन यूजुअली एंजाइम्स का ग्लैंड होता है और एंडोक्राइन हार्मोन्स का ग्लैंड होता है। तो एक्सोक्राइन के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को पता होगा, सैलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही पड़ते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे अ, जो भी पिट्यूटरी है या बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम आप लोगों को पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरो ग्लैंड। तो उसका एग्जांपल है पैनक्रियास, हमारा टेस्टिस, ओवरी, क्योंकि यहाँ से एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। एंजाइम ट्यूब के अंदर से निकलते हैं और हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। Compound epithelium is made of more than one layer, multilayer, of cell and thus has a limited role in secretion and absorption. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. They cover the dry surface of the skin and moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts. तो कहाँ पर मिलते हैं ये लिखा हुआ है और किस काम में आते हैं, प्रोटेक्शन देने के। किससे प्रोटेक्शन, केमिकल एंड मैकेनिकल जो स्ट्रेस यानी कोई भी जो चीज़ डैमेज कर सकती है उससे प्रोटेक्शन देती है। All cells in epithelium are held together with little intercellular matrix. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. Three types of cell junctions are found in the epithelium and other tissue. These are called as tight, adhering, and gap junction. Tight junctions help to stop substances from leaking across the tissue. Adhering junction perform cementing to keep neighboring cell together. Gap junction facilitate the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm to adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. तो ये सारी बातें मैंने क्लास में कही थी। टाइट जंक्शन जो है वो लीकेज से छुटकारा देती है। एडरिंग जंक्शन वो दो सेल को साथ जोड़े रखने में काम आती है। और गैप जंक्शन से मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कनेक्टिव टिश्यू फिर कल पढ़ेंगे। तो बाय बाय।